Hello everyone and welcome to this video. So guys, the upcoming exam is IRDAI 2024, and in this session we'll be talking about the descriptive English part of your IRDAI exam for the year 2024. So guys, before we jump into the session, don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel if you're here for the first time. Guys, IRDAI is a very reputed job and it's a very reputed organization as well. And the assistant manager post is not very frequently out, but this year, and it was also there last year, so hopefully it will be conducting some recruitment test almost every year from now on, and this has become a mainstream exam for the students. So guys, if you are good at insurance, right, this is the exam for you. So the agenda of this session is, guys, first of all, I'll give you a brief overview of what this exam entails. Phase 2, I'm talking about phase 2 here. Then what is the syllabus, what is the word limit, and the weightage of every question in the exam. And I'll also show you the previous year questions, the topics that were asked in the year 2023 and also in the year 2017. So don't miss out, don't skip the video, don't just move away, don't forget to watch the whole session without any break. So let's begin, guys. What is the general overview of this exam? See, guys, there are 3 papers in phase 2 in your IRDAI exam. First is your insurance and management, second is your descriptive English, and third is your economic and social issues, which is ESI. So many students are well versed with ESI, and many students do very well in insurance and management because that has been their main subject all along. But the game changer in this exam is, guys, descriptive English. Many students forget that descriptive English can make or break this exam, because the lead that you need to secure your final position in the after the interview is can be achieved by only descriptive English. See, guys, everyone is preparing for ESI, everyone is giving his or her best for ESI, everyone is preparing for your insurance and management, but descriptive English is the paper which is the most neglected paper out of the 3. So guys, generally it has been observed that descriptive English is the most neglected section while preparing for IRDAI exam. A descriptive English section which comprises for 5 questions. One is essay, the other is précis, the third is reading comprehension, fourth is letter writing, and fifth is statement expansion. Now this section has equal weightage as that of the other 2 sections in the phase 2 exam. So you need to understand that the better you perform in this section, the better your written score will be, and which in turn will increase your overall score when the interview score will be added to your selection. So guys, that is why descriptive English is the game changer. This is one section where you can take a huge lead, you can create a gap, and you can secure your position in the final round. Right, so that is how important descriptive English is. Now let me give you the syllabus of this exam. Now there are basically 5 questions, and you have to come. The biggest challenge in this paper is time, guys. You only have 60 minutes. Collectively, you have 1 hour to complete these 5 questions, which is a challenge in itself. But the good part is this is not a typing based paper, this is a handwritten based paper. तो आपको लिख के अपने आंसर्स प्रेजेंट करने होते हैं ऑन पेपर. तो टाइपिंग नहीं है इसमें, हैंड राइटिंग है, और राइटिंग की अब आपकी प्रैक्टिस आई थिंक हो चुकी होगी. तो कौन से 5 क्वेश्चंस आते हैं, गाइज, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में फॉर 100 मार्क्स? फर्स्ट इज योर एसे, second is your précis writing, third is comprehension, fourth is letter writing, and fifth is your statement expansion. ऐसे में आपको 3 या 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से एक टॉपिक को चूज करना होता है आपको, एंड यू हैव टू राइट एन एसे ऑफ फॉर अराउंड 300 वर्ड्स. तो 30 मार्क्स एसे की वेटेज है, और इसमें आपको 300 वर्ड्स के अराउंड लिखने होते हैं. मैक्सिमम लिमिट आपको 500 वर्ड दी होती है, बट आपको लिखने कितने होते हैं? यू कैन राइट अप टू 300 वर्ड्स, क्योंकि 60 मिनट्स में आप उससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाओगे गाइस, ये पेपर पूरा नहीं होएगा नहीं तो. राइट, सो एसे 30 मार्क्स 300 वर्ड्स. नेक्स्ट इज प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग की आपको एक पैसेज मिलेगा विच वुड बी अराउंड 420 या 450 वर्ड्स के आसपास होगा. उसको आपको 120 वर्ड्स में उसकी एक प्रेसी बनानी होगी बाय गिविंग इट अ टाइटल. राइट, उसकी वेटेज रहती है आपकी 15 मार्क्स. फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आता है जो कि रफली 500 वर्ड्स का होता है, उसको पढ़ना होता है, और उसके बेसिस पे आपको 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिनको आपको इलेबोरेट करके आंसर लिखना होता है. इसकी वेटेज रहती है आपकी 20 मार्क्स. फिर एक लेटर आता है गाइज 20 मार्क्स का, जिसको आपको 120 वर्ड्स में लिखना होता है. लेटर आपको
सेमी फॉर्मल और फॉर्मल टॉपिक्स में मिलता है, जैसे कोई ग्रेवेंस लेटर हो गया, कोई रिक्वेस्ट लेटर हो गया, कोई कंप्लेंट लेटर हो गया, या कोई कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर हो गया, या कोई थैंकिंग यू लेटर हो गया। तो ये लेटर आपको सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेटर आपको लिखने को मिलता है। इसमें सारा वेटेज जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर का होता है, कि आप स्ट्रक्चर कितना अच्छा क्रिएट करते हो, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो अपने लेटर को। और लास्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो आता है आपका स्टेटमेंट एक्सपेंशन के ऊपर। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है guys। जैसे मैंने उसने स्टेटमेंट दे दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, मतलब देता तो ऐसे है कि अनाउंस वर्थ ऑफ प्रिवेंशन इज मोर देन सॉरी, हाँ, अनाउंस वर्थ ऑफ प्रिवेंशन इज अ पाउंड वर्थ ऑफ क्योर, मतलब वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या पीस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू वॉर, इट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे ऐसे आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और आपको उसको इलाबोरेट करना होगा। ऐसे स्टेटमेंट दे देता है जैसे अ पर्सन हु डज नथिंग, ठीक है, या हु स्टॉप्स ट्राइंग हैज स्टॉप्ड लिविंग, ऐसे टॉपिक दे देता है वो। स्टेटमेंट दे दी, अ पर्सन हु हैज स्टॉप्ड ट्राइंग हैज स्टॉप्ड लिविंग इन हिज लाइफ। तो जब आप ट्राई नहीं कर रहे कुछ नया, तो फिर आप जी कहाँ रहे हो, फिर तो आप मतलब एक स्टैचू की तरह बनने पड़े हो, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट दे देता है, उसको आपको 100 वर्ड्स में एक्सपैंड करना होता है। और इसकी वेटेज रहती है आपकी 15 मार्क्स। 30 + 15 45 + 20 65 + 20 85 + 15 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स के लिए गाइस एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे। 300 वर्ड्स फॉर योर एसे, 120 फॉर योर प्रेसी, दैट इज 420। 5 क्वेश्चंस में अगर आप 40 वर्ड्स पर आंसर भी लिख रहे हो, तो 5 क्वेश्चन में 200 वर्ड्स ही हो गए। तो 420 + 200 इज 620। 120 वर्ड्स आपके लेटर के, 620 + 120 740। 740 प्लस आपको 100 वर्ड्स अपने एक्सपेंशन के लिए, तो मतलब 840। तो 840 850 लगभग 850 वर्ड लिखने हैं आपको 1 घंटे के अंदर, विच इंक्लूड्स रीडिंग पैसेज फॉर प्रेसी एंड 1 पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। सो गाइज ये चीज आपको अगर आपको समझनी है, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम। तो किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, अब मैं ये बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में गाइज। तो एसए का आपका जो वेटेज है, एसए की जो आपकी टाइम लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी 15 मिनट्स। 15 मिनट में आपका ऐसे पूरा हो जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम फिर आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं। ठीक है, प्रेसी के लिए कम मिनिमम टाइम जैसे 10 मिनट्स, आपने 2-3 मिनट में अपना पैसेज पढ़ा और अगली 6 से 7 मिनट में अपनी प्रेसी बना ली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्योंकि 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी आपको 15 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और पैसेज भी पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद बचे आपके लेटर और एक्सपेंशन, ये दोनों आपको 10-10 मिनट में करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा आप इस पेपर को पूरा नहीं कर पाओगे। तो दिस शुड बी अ टाइम मैनेजमेंट। 15 मिनट्स फॉर एसे, 10 मिनट्स फॉर प्रेसी 25, 15 मिनट्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40, 10 minutes for your letter 50 and 10 minutes for your statement expansion, that is 60 minutes। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम ब्रेकअप होना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, 15 10 15 10 10। ठीक है, तो ये 10 छोटे क्वेश्चंस के लिए जो 15 वाले हैं, और बाकी जो बड़े क्वेश्चन है आरसी और एसए उनके लिए 15 मिनट्स ईच। ये आपका ब्रेकअप होना चाहिए टाइम का ऑन एन एवरेज। अब कभी कभी होता है इसके प्रेसी जल्दी हो जाती है, तो आरसी थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम ले लेता है, वो सब्जेक्टिव चीज़ होती है, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेटर होता जाएगा। सो द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द बेटर इट इज़ गोइंग टू गेट फॉर योर एग्जाम। तो गाइज मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, वर्ड लिमिट बता दी, वेटेज बता दी, और उनका टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया। नाउ इफ यू फॉलो दिस टू द टी, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू वेल इन द एग्जाम। राइट नाउ अब मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाता हूँ इस 2023 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर एसए। तो 2023 में जो टॉपिक पूछे गए थे गाइज, पहला था डिस्कस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। ये इंश्योरेंस, अब मैं ये भी हम देखते हैं इसके कौन सा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट टॉपिक वाज बेस्ड ऑन योर इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है। ठीक है, सेकंड टॉपिक था इलैबोरेट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स अडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये था आपका आई थिंक ये ये इसको हम बोल सकते हैं ईएसआई का टॉपिक, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। ईएसआई में आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, राइट। थर्ड आ गया गिव योर व्यूज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारा सोशल टॉपिक हो गया, सोसाइटल टॉपिक, सोशल टॉपिक हो गया हमारा एक। तो एक इंश्योरेंस पे, एक ईएसआई पे, एक सोशल टॉपिक, और एक हो गया हमारा डिस्कस द फ्रीडम, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये आ गया आपका एक स्टैटिक टॉपिक। इसमें कोई फैक्ट्स एंड डेटा की जरूरत नहीं है, कोई करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है, ये आप जो आपका ओपिनियन है उस बेसिस पे आप लिख सकते हो। तो देखना गाइस, इंश्योरेंस, ईएसआई, सोशल टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक, ये था 2023 के टॉपिक्स। अब 2017 के टॉपिक्स देखना एक बार गाइस। 2017 में क्या टॉपिक मिले थे आपको? फर्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग
बैलेंसिंग प्रोग्रेस विद प्रेजर्वेशन। सो ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल्स जो उसके ऊपर बेस्ड था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। सेकंड आ गया टैक्स सेविंग इन इंश्योरेंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल टूल। ये आपका जो टॉपिक था वो बिल्कुल डायरेक्टली इंश्योरेंस पे बेस्ड था, इंश्योरेंस का आ गया। थर्ड टॉपिक गाइस, गिव योर व्यूज ऑन यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सोशल टॉपिक आ गया आपका कि यूथ और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस करना था आपको। तो गाइस आप एक वर्टिकल्स देख रहे हो कि किन टॉपिक्स पे आपको टॉपिक मिल रहे हैं। और फोर्थ, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, फिर से स्टैटिक टॉपिक आ गया आपका। तो वही सेम चार टॉपिक आपको, सेम चार पैटर्न आपको 2023 में देखने को मिलेंगे और वही आपको 2017 में भी देखने को मिलेंगे। तो एक चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि कहीं ना कहीं जो चार टॉपिक हमें इस बार मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक टॉपिक ज़रूर कोई सोशल इशू पे होगा, एक कोई इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पे होगा, ईएसआई पे, एक आपका इंश्योरेंस पे बेस्ड होगा और एक आपका स्टैटिक टॉपिक होगा इफ द पेपर इज अगेन इन लाइन लाइक लास्ट ईयर, राइट। तो कोई चेंज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। तो इन वर्टिकल्स को आपको फोकस करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एसए, बिकॉज एसए इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उसमें अनएक्सपेक्टेड टॉपिक वाले एक वो फैक्टर रहता है, राइट। सो वो चीज़ की वजह से हम आपको पहले ही प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि इन्हीं वर्टिकल से एक ना एक टॉपिक आपको जरूर करने को मिलेगा इस साल भी, ठीक है। तो आपके की टारगेट एरियाज क्या होनी चाहिए फॉर इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट? नंबर 1 इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, नंबर 2 एरर फ्री आर्टिकुलेशन, देयर शुड बी नो typos, no spelling errors, there should be no punctuation errors, there should be no missing words, या कोई भी ऐसा एरर नहीं आपके आंसर में होना चाहिए, it should be refined. नेक्स्ट आपकी वोकेबुलरी और आपकी बैकअप थीसिस। बैकअप थीसिस में क्या क्या आ जाता है गाइस? आपके फैक्ट्स, ठीक है, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, और स्कीम्स, ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। गॉट इट? एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ड्राफ्टिंग स्किल्स, स्ट्रक्चर कैसा है आपके आंसर्स का, डू यू स्ट्रक्चर योर आंसर्स और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। तो ये चार चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है अपनी प्रेपरेशन के लिए। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज फॉर योर प्रेपरेशन? सबसे पहला, द फॉर्डर मटेरियल दैट वी प्रोवाइड यू, इट्स वेल क्यूरेटेड, तो बहुत अच्छे से क्यूरेटेड रहता है, वो अप टू डेट रहता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड रहता है, तो दैट शुड बी अ फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रेपरेशन फॉर योर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स। देन do read something on a daily basis from newspaper editorials. For economic and social issues, you can either follow the Hindu or the Economic Times. For PBS or Live Mint, you can use online articles. For online articles, you can use either the PBS, the Public Broadcasting Services, or Live Mint. For financial or insurance-based topics, you can use either the Business Standard or the Economic Times or any other economy-based newspaper. Now, for your research, do use your Wikipedia and Google for your research, and also for your preparation, guys. This is my suggestion: start using AI as well, artificial intelligence. This is also very important because today you need smart approach to prepare for this exam, and using AI is one of them, right? So guys, this was your video for today. I hope the session will help you in your preparation and in your journey ahead. So we wish you all the success in your endeavors ahead, guys. And if you wish to join us, we have launched a crash course for phase 2. If you wish to join us in our preparation, there are live classes, full length tests, and we'll be providing you all the insights about the paper and the questions and answers that you write. So you can join us in our crash course. The link is given in the description of the video. If you have any doubt, if you have any queries regarding anything at all, you can always call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can drop us an email on this ID, which is hello@edutab.co.in. So keep up the good work, stay safe, stay healthy, keep on working hard, and I wish you all the success in your endeavors ahead, so that you can come out with flying colors. So having said that, guys, I'll take your leave for today. I'll come up with more such sessions in the near future to help you in this journey ahead. So keep up the good work and happy learning to all of you. Take care. Bye bye.